أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی نا، یہ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب پورے سب جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ، تو یہ اس آیت کا اطلاق بہت ساری روایتوں کے مطابق ایسی جگہوں پر آتا ہے کہ جب ہمارے مسلمان مکہ سے مدینہ گئے ہجرت کر کے، تو جب وہاں نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو اندر ہی اندر وہ لوگ رنج اور غم میں مبتلا ہو جاتے تھے مسلمان، کیونکہ ان کو خانے کعبہ یاد آتا تھا، کیونکہ وہ اس طرف نماز پڑھتے تھے۔ اور کچھ کا یہ ہے ماننا کہ یہ جب بیت المقدس کو چھوڑ کر جب یہودی طعنہ دیتے تھے نا کہ تم ہمارے جو ہے اس کے حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو مسلمانوں کو جب یہ طعنہ دیتے تھے تو وہ مسلمان جو ہے نا پھر اس میں سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ یہ یہودی ہمیں ایسا طعنہ دے رہے ہیں تو پھر ہمیں کس طرف کر کے منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ تو یہ اس آیت کا اطلاق وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر ہوتا ہے۔ اور بعض کا نزدیک یہ ہے کہ یہ جب آیت اتری تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سفر میں جو لوگ ہوتے تھے جنگ کے دوران بھی، یا جب اپنا مال بیچنے کے لیے سفر کرتے تھے، تو سواری میں جب ہوتے تھے، سواری پہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ سواری کا کبھی منہ کس طرف ہو جاتا تھا، کس طرف ہو جاتا تھا، کبھی سمت کا اندازہ بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جدھر بھی نماز پڑھو گے ادھر تم اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، کیونکہ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ ہر سمت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی جگہ کا کوئی قید کا نہیں ہے۔ اب جیسے کہ ہم لوگ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اور جب ہم ٹرین میں چڑھے، ٹرین تو رکی تھی، تو ہم نے اندازہ کر لی کہ یہ ہمارا قبلہ اس طرف ہے ٹھہری ہوئی ٹرین میں۔ اب جب ٹرین نے چلنا شروع کیا تو اس نے رخ بدل لیا، اور آپ نماز کی حالت میں، تو ایسے میں نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز آپ کی برقرار ہے۔ یہ اس آیت کی وجہ سے ہمیں یہاں اجازت ملی ہے۔ اسی طرح ہم بس میں ہوں یا اور کوئی ایسی سواری ہو ہماری کہ جس میں قبلے کی طرف منہ کر کے تو ہم نے اسٹارٹ کی تھی نماز، لیکن وہ دورانیہ سفر میں اس کا رخ چینج ہو گیا، تو نماز پھر بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مغرب اور عشاء کا وقت ہے یا فجر کا وقت ہے، ہم ٹرین میں 2 دن کا سفر کر رہے ہیں، اور ہمیں سمت کا اندازہ نہیں ہے، اور ہم سفر بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھنی ہے ہم نے، تو پھر ہم بس اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کے جہاں دل نے مطمئن کر دی نا، اور جگہ جو ہم جس ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اس جگہ کو دیکھتے ہوئے تعین کر لیے کہ بھئی ہم اس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو وہاں حاضر اور ناظر جان کے اللہ کو اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری نماز ہو جائے گی۔ کب؟ جب تم سواری پر ہو تو، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کے اطلاق بہت سارے ہیں، تو ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اجازت دی ہے کہ ہم جو سواری میں ہوں تو نماز پڑھ سکتے ہیں کسی بھی طرف سمت کر کے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے، اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ یہ کہتے ہیں مطلب یہودی، بنی اسرائیلی، عیسائی، جتنے بھی مشرکین ہیں، جتنے بھی کافر ہیں، یہ سب ان کا کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اور وہ اولاد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اولاد فرشتوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی جو اولاد ہے وہ فرشتے ہیں، اور ان فرشتوں کو بھی وہ اس میں رکھتے ہیں مونس میں، مذکر میں نا، کہ جو عورت ذات ہوتی ہے، کہ یہ جو فرشتے نا یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، مرد بھی نہیں مانتے۔ اور اللہ تعالیٰ ابھی ہم جب آگے چلیں گے نا تو اس میں بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ یہ کتنے خراب لوگ ہیں کہ اپنے لیے یہ بیٹے پسند کرتے ہیں۔
जैसे आज के दौर में भी कि हर ख्वाहिश होती है कि बेटा हो, तो अपने लिए ये लोग बेटे पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला के लिए अगर ये औलाद करते भी हैं, जबकि है नहीं अल्लाह ताला की औलाद, तो औलाद रखते हैं अल्लाह ताला के लिए, फरिश्तों को मंसूब करते हैं। तो बेटियां, कितने खराब लोग हैं ये लोग वाकई में। कभी कभार तो ऐसा जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा खून खुल जाता है हरकतें और इनकी मक्कारियां देखकर, कि किस तरह के लोग थे ये जलील लोग, कि वाकई में बंदा का खून खुल के रह जाए, कि अपने लिए चाहते हैं कि बेटे हों और बेटे ही पसंद करते हैं, और जब अल्लाह ताला के लिए रखी औलाद तो बेटियां रखी। अब फरिश्तों को बोलते हैं कि फरिश्ते जो है ना वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो औलाद से पाक है। वो ये जो मखलूक है ना सब, ये सब अल्लाह ताला की मिल्कियत में है, और ये मिल्कियत में भी है अल्लाह ताला के, और ये जो अल्लाह ताला की मखलूक है ये बहुत फर्मा बरदार हैं इसकी, फरिश्ते और जो मुसलमान जिन ऐसे जो अल्लाह ताला के ताबे हैं, जो आसमानों पर भी हैं। वो ज़मीन और आसमान का इब्तदन पैदा करने वाला है, वो जिस काम को करना चाहे कह देता है कि हो जा, बस वो हो जाता है। अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अपने अल्लाह ताला अपने शान और शौकत बयान फरमाते हुए कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ जो तख्लीक हुआ है ना, आसमान को जो तुम देख रहे हो, इसकी सबसे पहली बनावट, सबसे पहली मर्तबा जो तख्लीक हुई है, जो आसमान सबसे पहले जब बंदा गर्दन ऊपर करता है ना, आसमान नज़र आता है, तो ये सब अल्लाह ताला की तख्लीक की हुई है। और ये सब इसको जो बनाया ना अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को, तो अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है बनाना। वो तो बस कोई भी चीज़ का इरादा करता है ना, किसी भी चीज़ को बनाने का, किसी भी काम के करने को जो इरादा करता है, तो वो बस ये क्या कहता है, हो जा, कुन फयाकुन, बस इतनी देर में उसका काम हो जाता है, जितनी देर में वो कुन कहता है। इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा कि खुद अल्लाह ताला हमसे बातें क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह ऐसी ही बात इनके अगलों ने भी कही थी, और इनके दिल यकसा हो गए। अल्लाह ताला हमारे नबी वसल्लम से भी ये मुखातिब होकर कह रहे हैं, बराह रास्त वैसे तो नुज़ुल हो रही है हमारे नबी वसल्लम पर, लेकिन मुखातिब भी हमारे नबी वसल्लम से ये कि ये जो इस तरह के जो बेइल्म लोग हैं ना, यानी कि बेइल्म लोग से पिछली नशिस्त में आपने सुना था कौन थे, जो हमारे अरब के जो मुशरिकीन थे, जिनके पास कोई किताब नहीं थी, जो किसी नबी और पैगंबर को नहीं मानते थे, तो वो बेइल्म थे। और जो यहूदी और ये ईसाई थे, ये इल्म वाले थे, और ये लोग किताब वाले भी थे, अहले किताब थे ये। तो अहले किताब तो इल्म भी रखते हैं, लेकिन जो मुशरिकीन अरब के थे ना, वो ना उनके पास कोई किताब थी, ना वो किसी बारे में इल्म रखते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बेइल्म लोग भी ना, इनको देखा देखी, किनको देखा देखी, ईसाइयों को और यहूदियों को देखा देखी, ये भी ये बात कहना शुरू हो गए कि तुम अगर नबी हो, तुम सच्चे हो, तो कोई बड़ी निशानी क्यों नहीं हमारे सामने लेकर आते, या अल्लाह ताला खुद क्यों हमसे नहीं बात करता। ये बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे इनके पिछलों ने कही थी। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके जो दिल हैं, इनके दिल भी उनके जैसे हो गए। किनके दिल किनके जैसे हो गए, मुशरिकीन जो है अरब के, उनके दिल यहूदी और ईसाई जैसे हो गए, क्योंकि इनके साथ ही रहते रहते वैसे ही बन गए, जैसे खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, वही बात है। हमने तो यकीन वालों के लिए निशानियां बयान कर दी हैं, जो यकीन रखना चाहे उनके लिए तो निशानी बयान कर दी हैं। अब वो सोचने और समझने की सलाहियत हो तो समझ में आ जाएगी बात। हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और जहन्नुम के बारे में आपसे बात परस्तिश नहीं होगी, बात परसिश नहीं होगी, यानी कि हमने जो है आपको खुशखबरी सुनाने वाला, यानी कि आपको जो है हमने लोगों के लिए खुशखबरी इस तरह से सुनाई है कि जो अच्छे और नेक लोग हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने वहाँ जन्नत में क्या क्या इनामात रखे हैं, और जो यहाँ पर मजलूम हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनके साथ ज़्यादती हुई हैं, अल्लाह ताला उनको आखिरत के दिन पूरा पूरा इंसाफ देने वाला है। इस तरह की खुशखबरी है लोगों के लिए। और दूसरी डराने वाला बनाकर भेजा, किनके लिए डराने वाला भेजा, जो रास्ते से हटे हुए हैं
ان के लिए डराने वाला भेजा कि क़यामत आएगी, तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा, और जिन ताकतवरों ने गलत और नाजायज़ कमज़ोरों को दबाया, उनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, उनको भी बताया कि तुम्हें पूरा पूरा हिसाब देना है क़यामत के दिन इसका। तो यानी के लिए अल्लाह ताला ने एक ही शख्स को ये दोनों बनाकर भेजा है, इस दोनों साँचों में ढालकर भेजा है। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ज़ात है कि जो तमाम पूरी मखलूक के लिए आए हैं, वरना इससे पहले जितनी भी नबी आए हैं सिर्फ अपनी अपनी कौम के नबी बनकर आए, लेकिन एक हमारे नबी हैं जो पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, पूरी रहमत, पूरी आलमीन के लिए, पूरी कायनात के लिए। और अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और अल्लाह ताला कह रहा है कि जो आप देख रहे हो ना, जो रास्ते से भटके हुए हैं, जिनको आपने दावत दे दी है लेकिन ये फिर भी रास्ते पर नहीं आ रहे, तो इसके बारे में आप परेशान नहीं होइएगा, इसके बारे में आपसे पूछ-गुछ नहीं करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन, आप बरी ज़िम्मा हो गए, क्योंकि हिदायत देने का काम तो अल्लाह ताला का है। अब आपने अपना काम कर दिया इनको बताकर, अब अगर ये नहीं भी आते ना, और अल्लाह ताला ने इनके दिल पे मोहर लगा दी है कि अब ये जहन्नुम में जाएंगे, तो इसके बारे में आप परेशान नहीं होइएगा, इसके बारे में आपसे सवाल जवाब नहीं होगा। आपसे यहूदी और नसारा हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप इनके मज़हब के ताबे ना बन जाएं। आप कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है, और अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर इनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा और ना कोई मददगार होगा। ये बात अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से बराह रास्त खुद कह रहे हैं मुखातिब होकर। एक तो आयत का नुज़ुल भी है, ठीक है, जिब्रील अमीन के ज़रिए, और फिर मुखातिब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हैं कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि यहूदी और नसारी जो है ना, ये कभी भी आपसे हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप इनकी जैसे न बन जाएं। जैसे कि आप इनकी बात मानना शुरू हो जाए, इनकी तरह हो जाए, तो ये आपसे खुश हो जाएंगे, लेकिन आप हरगिज़ भी ऐसा नहीं करना। इनको कह देना कि जो अल्लाह की हिदायत है असल में सही और सॉलिड हिदायत किसकी है? अल्लाह ही की है। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने इनकी ख्वाहिशों की वजह से, इनकी खुशनुदी की वजह से, इनके दिल जीतने की वजह से इनकी पैरवी कर ली, अगर इनकी बात मान ली, इनके रास्ते पे चल पड़े, तो फिर ये जहन में रखिएगा कि फिर अल्लाह के पास फिर ना कोई आपका वली है और ना कोई आपकी मदद करने वाला है, फिर अल्लाह ताला आपकी भी पकड़ कर लेगा। फिर ये देख लें फिर आप। और अल्लाह ताला ये जो बात है ना, बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कह रहा है, लेकिन अल्लाह ताला भी खूब जानता है कि मेरा महबूब भटकने वाला नहीं है। तो इस आयत का इतलाक हम उन लोगों पर पड़ रहा है, कैसे हम लोगों पे कैसे पड़ रहा है कि ये सोच लो तुम कि जब मैं अपने नबी से इस तरह से बात कर रहा हूँ ना, कि मैं अपने नबी को रियायत नहीं दे रहा हूँ जिससे मैं इतना मोहब्बत करता हूँ, जिसके वास्ते ये सब कुछ बना है, तो क्या कह रहा हूँ मैं अपने महबूब से कि अगर इनकी खुशनुदी के लिए, इनके दिल जीतने के लिए, अगर इनकी पैरवी की पूरे तरीके से भी नहीं, सिर्फ किसी एक बात पर भी, तो समझ लीजिएगा कि आपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया, और अब आपके लिए वहाँ कोई ना वली है और ना कोई मददगार है। इस आयत का इतलाक हम लोगों पर कैसे पड़ता है कि अगर हमने अपने रिश्तेदारों की खुशनुदी के लिए, अपने दोस्तों की खुशनुदी के लिए, उनका दिल जीतने के लिए, अपने रिश्तेदारों का दिल जीतने के लिए अल्लाह ताला की रस्सी को छोड़ा, तो फिर तुम्हारा अंजाम क्या होगा? सोच लेना। फिर जब नबी से इस तरह से बात हो रही है कि तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा, फिर ना कोई वली होगा तुम्हारा, वकील यानी कि जो तुम्हारी सिफारिश करे, अपने नबी से कह रहे हैं, तो तुम्हारे ऊपर इस आयत का इतलाक हो रहा है, तो फिर सोचो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। अब हम आज के दौर में अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी औलाद के लिए, दिल जीतने के लिए क्या से क्या काम कर जाते हैं, अल्लाह ताला की रस्सी को छोड़ देते हैं, यहूदी और नसारे वाली जो हरकतें हैं उनके रास्ते पर चल पड़ते हैं, अल्लाह ताला के अहकाम को तोड़ देते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमसे जो कहा है, जो हुक्म हमें करने के लिए कहा है, उस हुक्म की नाफरमानी कर देते हैं। किसके लिए? रिश्तेदारों का दिल जीतने के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए, वालदेन अपनी औलाद के लिए, औलाद अपनी वालदेन के लिए। जैसे ही अल्लाह ताला की रस्सी को छोड़ा,
गलत रास्ते पर अगर आ गए दिल जीतने के लिए, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, समझ लो आपने बड़ा गलत किया, अमाल सारे बर्बाद, अल्लाह ताला की नाराज़गी हो गई। अब तुम्हारा कोई सिफारिश ही नहीं होगा क़यामत के दिन जो तुम्हारी सिफारिश करेगा। कौन? वो लोग भी नहीं होंगे जिनकी तुमने दिल जीतने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ा, जिनके दिल जीतने के लिए तुमने अल्लाह ताला के रास्ते को छोड़ा। अब कहाँ हैं वो लोग जिनके दिल जीतने के लिए, जिनकी खुशनुदी के लिए तुमने अल्लाह ताला को नाराज किया था? अब लेकर आओ उन लोगों को और कहो कि वो अल्लाह से तुम्हारी सिफारिश करे। नहीं, किसी के अंदर कहाँ जरूरत है, सबको अपनी अपनी पड़ी है भाई। आज तो ऐसा दिन है कि माँ बेटी को नहीं पहचान रही, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा। तो तुमने इन्हीं की खातिर दुनिया में दिल जीतने के लिए अल्लाह को नाराज किया था ना। बेकार, नहीं, कोई काम नहीं आने वाला। ये दुनियावी मफाद के लिए, इनके दिल जीतने के लिए, अपने रिश्तेदारों के दिल जीतने के लिए, इनकी खुशनुदी के लिए अगर हम अहकाम इलाही से हटें, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ें, तो कोई फ़ायदा नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। अल्लाह ताला को नाराज करके तो हमने समझ लो सिर्फ नुकसान ही नुकसान किए, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। उस दुनियावी मफाद के लिए भी जिनका अगर दिल जीता ना, अपने मफाद के लिए भी अगर उन्होंने ऐसे कुछ काम कर लिए कि हमारा यहाँ फ़ायदा हो जाएगा, तो वो एक नाकिस और वो एक झूठा और हल्का कमज़ोर सा है वो मफाद। उसमें कोई वज़न नहीं है, कोई पायदारी नहीं है, बेकार है। लेकिन जब अब तुमने अपने उस फायदे को लात मार दी, दुनियावी फायदे को अल्लाह ताला की रज़ा को रखते हुए, तो फिर तुमने ऐसा ज़बरदस्त काम किया है, ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा किया है, ऐसा ज़बरदस्त तिजारत की है, सौदेबाजी की है अपने अल्लाह ताला से, कि तुम देखो कि तुम्हारा फिर अब दुनिया में भी फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला को पाने के बाद वहाँ के लिए भी तुमने सुरखरू लिख दी है, तुम्हारा वहाँ के लिए भी मर्तबा बुलंद हो गया। फिर अल्लाह ताला की इन बातों को देखो, कितनी आसान सी बातें हैं, अल्लाह ताला ने कितने वादे करके सब बताया हुआ अपनी किताब में, कुरान पाक में। समझने वाला होना चाहिए तो बिल्कुल सीधी सी बात समझ में आएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हाँ, खुशनुदी हासिल करने के लिए, रिश्तेदारों के लिए हमें अल्लाह ताला की रस्सी को तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कोशिश भी करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से हमारे रिश्तेदारों का दिल आज़ारी भी ना हो, ऐसे अल्फाज भी ना इस्तेमाल किए जाए, ऐसी हरकत भी ना की जाए कि उनकी दिल आज़ारी भी ना हो, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला ने आगे हुक्म दिया है कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। ठीक है, अच्छा ये पीछे गुजर चुका है कि ना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का वादा बनी इसराइलियों से लिया गया था कि ये अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेंगे। ठीक है, तो हमें जो है ना अपने अल्लाह पाक के इस हुक्म को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए चलना चाहिए। तो हम कभी भी गुमराह नहीं होंगे, कभी भी अपना नुकसान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं भटकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह से सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।